Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at Ease. So today I am going to start next chapter number 5 reproduction. Reproduction chapter की exercise में सबसे पहले MCQs है. MCQs में है number 1 the process which is essential for continuing in survival of a species. ऐसा process जो कि बहुत ज़रूरी है survival of a species के लिए वो है reproduction. The type of reproduction which is necessary for evolution, ऐसी reproduction की type जिसमें जो कि ज़रूरी है evolution के लिए, मीन्स के जो भी इर्तिका होता है उसमें कौन सी ऐसी reproduction है जो कि अपना किरदार अदा करती है जिसकी वजह से evolution होता है, वो है sexual reproduction. The unicellular structure responsible for asexual reproduction without fusion is ऐसा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है asexual reproduction के लिए लेकिन उसमें कोई फ्यूजन नहीं होती, वो है स्पोर्स. The example of stem which run horizontally on surface of soil to produce vegetatively. एग्जाम्पल बतानी है ऐसी स्टेम की जो कि हॉरिजॉन्टली सरफेस ऑफ सॉइल पे ग्रो करती है, रन करती है और प्रोडक्शन उसकी वेजिटेटिवली होती है. मिंट यानी कि पुदीने की जो स्टेम है उसको अगर हम हॉरिजॉन्टली लगाएं तो रूट्स निकल आते. प्लांट स्टेम दैट अराइज फ्रॉम बर्ड्स ऑन द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर ऐसे प्लांट स्टेम जो कि बर्ड से अराइज होते हैं पेरेंट प्लांट की बेस में से, वो कहलाते हैं सकर. टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज ऐसी टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन जिसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं उसे कहते हैं एपोमिक्सिस. The female gametophyte of angiosperm plant is angiosperm का female gametophyte क्या कहलाता है? Embryo sex. 3 and zygote is angiosperm develop into जो 3 and zygote है angiosperm में वो डेवलप होता है endosperm में. endosperm जो है वो basically nourishment provide करता है seed को. The male gonads in rabbits are rabbits में जो male gonads हैं वो testes होते हैं. The female gametes are fertilized in the rear end of female gametes हैं वो fertilized होते हैं रेयर एंड ऑफ फिलोपियन ट्यूब. शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन. सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction, type of reproduction which takes place without fusion of male and female gametes. ऐसी reproduction की type जिसमें fusion नहीं होती male and female gametes की. Sexual reproduction ऐसी type है जिसमें male और female gametes की fusion. In this type of reproduction only one parent is involved. Asexual में एक parent involved होता है जबकि sexual reproduction में two parents of opposite sexes are involved. Offspring are exactly similar to their parents. Asexual में offspring similar होते हैं जबकि sexual reproduction में बिल्कुल exact copy या exact similarity नहीं होती. Organisms are genetically similar to each other as well as to their parent. जो organisms हैं वो genetically भी बिल्कुल similar होते हैं asexual reproduction में, जबकि sexual reproduction में ऐसा नहीं होता, dissimilarity होती है. No new combination of genes genetic recombination occur. इसमें कोई combination नहीं होता genes का, ना ही कोई genetic recombination होती है, जबकि sexual reproduction में genetic recombination होती है और बहुत सारी variation आने की वजह से evolution जो है वो होता है sexual reproduction. Epigeal germination and hypogeal germination. Epi कहते हैं above को और geo कहते हैं earth को, और hypo means होता है below and geo कहते हैं earth को. means के above earth and below earth. क्या है above earth और below earth? जर्मिनेशन सीड की, सीड जो है वो या तो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या जमीन से नीचे ही वो स्टार्ट हो जाता है जर्मिनेशन. तो एपिजियल जर्मिनेशन ऐसी टाइप ऑफ जर्मिनेशन है जहाँ सीड जो है वो सॉइल से बाहर आता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन और हाइपोजियल में वो अंदर ही रहता है. ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन एपिकोटाइल. जो ग्रोथ रेट है हाइपोकोटाइल की वो ज्यादा है एपिकोटाइल से. कोटाइल से मुराद यहाँ कॉटिलेडन है. The growth rate of epicotyle is higher than hypocotyle. यहाँ पर growth rate epicotyle की ज्यादा है hypocotyle से. Hypocotyle grows in the form of arc. Hypocotyle जो है in the form of arc होता है, जबकि यहाँ hypocotyle जो है वो does not grow in the form of arc. यहाँ पर form of arc में नहीं होता. The cotyledons become green when come above the soil and work as first foliage leaves. यहाँ जो cotyledons हैं वो green हो जाते हैं जब वो सॉइल से बाहर आते हैं, जो उनका फर्स्ट फॉलिएज लीव होता है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स जो है वो ग्रीन नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की आपने टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना है.
यहाँ सिंपल सा एक फ्लावर गिवन है जिसमें आपको ये पिंक कलर के पेटल्स नजर आ रहे हैं। पेटल्स के साथ ये बेस है जिसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के नीचे पेड्यूल्स है, रिसेप्टिकल है, और ये जो आपको ब्लैक नजर आ रही है 6, ये फिलामेंट्स कहलाते हैं। फिलामेंट्स के ऊपर एंथर होता है। एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट है ये पूरा पिस्टल कहलाता है। पिस्टल में सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, सेंटर वाला पार्ट स्टाइल होता है, और लोअर पार्ट ओवरी कहलाता है। और ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल, जिसके अंदर सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ अ न्यू प्लांट डेवलप्स विद एन ऑलरेडी ग्रोइंग प्लांट। एक न्यू प्लांट किस तरह से डेवलप होता है जो ऑलरेडी ग्रोइंग प्लांट के साथ। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये पॉसिबल है। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल फॉर्म्स अ स्मॉल आउटग्रोथ। ये एक ऐसी एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें पेरेंट सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं स्मॉल आउटग्रोथ, यानी कि उस पेरेंट के साथ ही एक छोटा सा एक और बर्ड बन जाता है। एक आउटग्रोथ होती है जिसे बर्ड कहते हैं। फिर बाद में वो बर्ड उसके साथ डिटैच होकर पेरेंट सेल से एक बॉडी में ग्रो करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। और ये यूजुअली होता है यीस्ट में और कुछ प्लांट्स में। हाउ लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। लीव्स कैसे न्यू प्लांट्स में डेवलप। सम लीव्स हैव बर्ड ऑन देयर मार्जिन। कुछ लीव्स की जो मार्जिन है उसमें बर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, एक ब्रायोफाइलम एग्जांपल दी है यहाँ। These birds give rise adventitious roots when fall on ground or come in contact with soil। ये जब पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो इनकी जो ये साइड्स या कॉर्नर्स हैं उनमें से रूट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है सॉइल में जाकर। आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट, और कुछ टाइम बाद वो एक पूरा अलग से प्लांट, इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। अगर आप इसे देखें तो ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा। इसी तरह ये अलग से ये बहुत सारे प्लांट्स में डिवाइड हो जाएगा ये एक लीफ। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की डायग्राम बतानी थी। ओव्यूल जो है वो इस तरह अपसाइड डाउन होता है। माइक्रोपाइल है, बाहर वाला जो है आउटर इंटेगुमेंट है, अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट है। फनिकल होता है प्लीसेंटा, प्लीसेंटा जहाँ से ये अटैच होता है ओवरी के साथ। हिलम है, उसके बाद जो इनर पोर्शन है इसमें एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर एग है। इन एग में ये साइनर्जिड्स होते हैं। ये एग है, ये 3 है। 3 में से 2 साइनर्जिड्स हैं, एक एग है। सेंटर वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है और ऊपर वाले जो है वो एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं, और उससे ऊपर जो पार्ट है वो चिलाजा। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मेल गैमेटोफाइट बनानी है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन का स्ट्रक्चर होता है, तो ये इस तरह का कुछ पॉलन दिखता है। जनरेटिव सेल्स होते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ। एक्साइन आउटर कवरिंग एक्साइन कहलाती है। इनर लाइन जो है इनर मेम्ब्रेन इंटाइन कहलाती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका अपना, और एक जर्मपोर होता है। लिस्ट आउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट विद ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताने हैं रैबिट के, उनके ग्लैंड्स के साथ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट में सबसे पहले है गोनेट्स। गोनेट्स गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। इनमें 2 टेस्टिस होते हैं हैंगिंग आउटसाइड इन अ sac called scrotal cell, contains seminiferous tubules, epididymis to collect sperm। then duct आता है। duct में gametes collecting tubes होती हैं जिससे vas deferens जो कि 2 होती हैं। फिर जेनाइटल्स हैं, गैमेट्स डिपॉजिटिंग और रिसीविंग ऑर्गन जिसमें पीनस है, मस्कुलर ऑर्गन टू ट्रांसफर सीमन इनटू फीमेल जेनाइटल। ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है। व्हाट इज एसटीडीज। STDs क्या है? Sexually transmitted diseases, the diseases or infections which are passed from one person to another person through genital organs। ऐसे disease और infection जो कि एक person से दूसरे person में पास होते हैं genital organs के through, और genital fluids during sexual contact called sexually transmitted disease। जब sexually contact होता है तो genital organs के through, genital fluid के through जो भी डिजीज है वो पास हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। समटाइम्स दे कैन स्प्रेड थ्रू इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट एज वेल लाइक हर्ब स्प्रेड बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और कभी कभार ये ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट से एक दूसरे के पास रहने से हो जाती है। स्किन से जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है या एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं तो भी ये हो जाती है। सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर, और जो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनमें गोनोरिया, एड्स,
साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स जो है वो बहुत आम पाई जाती हैं। वाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉस्पेरस सोसाइटी। पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों कंसिडर की जाती है इम्पोर्टेंट किसी भी खुशहाल मुआशरे के लिए? नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। Population planning is the policy to limit the growth in number of population, especially in those countries which has limited resources. Population planning policy जो है वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को लिमिटाइज कर देती है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जितने कम रिसोर्सेज हैं उतनी ही पॉपुलेशन को लिमिटाइज कर दिया जाता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल वांट टू लिव क्वालिटी लाइफ। अब क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड है, जदीद दौर है, तो हर कोई चाहता है कि वो एक बहुत मयारी ज़िंदगी गुजारे। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स, तो उनके लिए बेटर हेल्थ, सेहत की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए। द एवरेज इज़ हायर देन बिफोर विच इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन कॉज स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज ड्यू टू हाई डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एवरेज ज़्यादा हो रही है और लोग जो हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है रिसोर्सेज पे, तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं। दिस स्ट्रेन कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, और इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होती है। कैसे होती है? जब लोग ज़्यादा होंगे, घर ज़्यादा बनेंगे, घर ज़्यादा बनेंगे तो जंगलात कटेंगे, एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन प्लानिंग जरूरी है। ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल ड्रॉ करेंगे। कहाँ से स्टार्ट लिया है एक टीएस ऑफ फ्लावर से, जिसमें हमें स्टेमन भी दिख रहे हैं एंथर के साथ, पिस्टल, ओवरी, ओव्यूल भी दिख रहा है। इस पिस्टल, ओवरी, ओव्यूल में से हमने ये ओव्यूल निकाला है। इस ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल बना है न्यूक्लियस के साथ, फिर मेगास्पोर डिवाइड हुआ, एम्ब्रियोसेक बना, एम्ब्रियोसेक से वो मजीद साइनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स और एग सेल। फिर यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ स्टेमन है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल एक था, 1 से 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में, 4 से फिर सेपरेट हुआ, फिर एक पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके वो ये स्पर्म जो है वो पहुंच गया इस पिस्टल तक, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जिसे कहा, और ये इस पोलन ग्रेन की ट्यूब बने अराइज होगी और वो जाकर इस ओव्यूल के अंदर फ्यूज हो जाएगा, और जिसे डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया? क्योंकि यहाँ पर एक तो एग बना रहा है और दूसरा जो है वो एंडोस्पर्म बना रहा होता है, दो चीजें बन रही होती है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्राइपोडल सेल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेते हैं और एक जाइगोट बनता है। ये जो आपके पास लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है और एक जाइगोट होता है, इन दोनों में एक जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और दूसरा जो है वो सीड बनाने में हेल्प करता है। फिर एंडोस्पर्म की कुछ सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं। इस तरह से ये सीड फॉर्मेशन होती है, सीड कोट बनता है और इस वक्त ये एम्ब्रियो कहलाता है। फिर जब इसे मिट्टी में डाला जाता है तो ये यंग स्पोरोफाइट प्लांट जनरेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतानी हमने नेचुरल प्लांट्स में कैसे होती है। सम ऑफ द एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। बाय फिजन, फिजन कहते हैं स्प्लिटिंग को। द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड फिजन। स्प्लिटिंग होना, टूट जाना सेल का 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में, फिजन कहलाता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, सादा है और बहुत तेज तरीन है ये। फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की फिजन होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी से मुराद, बाइनरी कहते हैं 2 को, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और ये होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरियम डिवाइड्स होकर 2 बैक्टीरिया बनाता है 20 मिनट्स के अंदर अंदर, और इस तरह बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं बहुत कम टाइम में। मल्टीपल फिजन जो है उसमें मदर सेल डिवाइड होता है 2 से ज्यादा सेल्स में। उनमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले है बडिंग। बडिंग हम पहले भी ऊपर शॉर्ट आंसर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एक पेरेंट सेल के साथ छोटी सी आउटग्रोथ हो जाती है और बाद में चल के वो अलग से पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक प्रॉपर प्लांट में ग्रो करता है।
और स्पोर्स जो है वो फंजाई, एल्गी और कुछ प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें स्पोरेंजियम डेवलप होता है बॉडी में। स्पोरेंजिया जो है वो न्यूमरस यूनिसेलुलर स्पोर्स यानी कि दाने प्रोड्यूस करता है, और ये जो दाने हैं बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, जो कि हवा से इधर से उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल सकते हैं। स्पोर्स हैव थिक रेजिस्टेंट वॉल, इनके पास एक वॉल होती है जो कि इन्हें सरवाइव करने में हेल्प करती है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसकी नेक्स्ट टाइप। वेजिटेटिव मींस नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव है, जिनमें से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, जैसे कि थैलिस, root, stem and leaf. If any of this part develop into new plant called vegetative propagation. अगर इनमें से कोई भी न्यू प्लांट निकलता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दिया गया है। These parts sooner or later separated from parent plant. ये parts जो है वो देर से या जल्दी parent plant से अलग हो जाते हैं। These specialized vegetative organs are morphologically different in different cases. ये specialized vegetative organs जो है वो different होते हैं डिफरेंट केसेस में, लेकिन आमतौर पर कुछ केसेस में ये एक या दो बर्ड्स ही पेयर करते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल गिवन है रनर कहते हैं ग्रास, घास या स्ट्रॉबेरी को, स्टोलन मिंट, राइजोम्स, जिंजर, बल्ब अनियन और गार्लिक, स्टेम ट्यूबर पोटैटो, बुलबिल, ब्रायोफाइलस, रूट ट्यूबर स्वीट पोटैटो, फाइलोप्लेट्स, ओपनशिया। What is pollination? Give adaptive characters of wind and insect pollinated flower. Pollination क्या है और उसकी adaptive characters बताने हैं। Pollination कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें pollen grains ट्रांसफर होते हैं एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक। स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो pollen grain है या pollen है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो pollination का मकसद क्या होता है? मेल सेल्स का, मेल गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाना फीमेल तक। तो वो उसके अपने फ्लावर में भी हो सकता है और वो क्रॉस पॉलिनेशन यानी दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। अडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर क्या अडेप्टेशन है? Some plants spread their pollen grains by wind and water, while the other is spread by insects and animals. कुछ प्लांट्स जो है वो अपने pollen grains को हवा या पानी के जरिए फैलाते हैं और कुछ जो है वो कीड़े मकोड़ों या जानवरों की मदद से ऐसा करते हैं। The plants which spread their pollen grain by wind and water have some adaptive characters. ऐसे plants जो कि अपने pollen grains को हवा या पानी के जरिए फैलाते हैं, उनके कुछ adaptive characters हैं कि उन्होंने क्या changes की हैं, क्या adaptations की हैं इस काम के लिए। The flowers of these plants are non-attractive. इनके flowers बिल्कुल भी attractive नहीं होते, small in size होते हैं और वो ज़्यादा कोई खुशबू bear नहीं करते, मीन्स उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही होती। They produce pollen grains in high quantity. ये जो है बहुत ज़्यादा quantity में pollen grains produce कर रहे होते हैं। The pollen grains are very light in weight. Some of them bear wings and some have parachute-like structure. बहुत हल्के होते हैं वजन में और इनमें कुछ के पास कुछ ऐसे wing-like structure होते हैं और कुछ के साथ पैराशूट की तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव हो तो उनमें उनको हेल्प कर सके। They do not produce high quantity of nectar. इनके पास ज़्यादा अमाउंट का नेक्टर कहते हैं जूस को, जूस नहीं होता। Adaptive character in insect pollinated plants, और जो insect pollinated plants है उनमें क्या characters आते हैं? The flowers are large in size. इनके flowers के जो size है वो large होता है ताकि वो insects को attract कर सके। They have bright colored petals or sepals or bracts. The pollen grains have sticky substance or hooks. इनके pollen grains जो है वो sticky substance या hooks के साथ होते हैं। They produce special odor. उनमें से कुछ special खुशबू आ रही होती है। They produce high quantity of nectar और इनमें से बहुत ज़्यादा रस निकलता है। Describe different types of asexual reproduction in animals. Different types की asexual reproduction क्या है animals में? पहले हमने plants में पढ़ी थी, अब हम animals में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली है ए फिजन यानी स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मैनी सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक, दो या दो से ज्यादा में टूटना। बाइनरी फिजन कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेल को। इसमें दो तरह की हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन टाइप ऑफ फिजन वेयर एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ऐसी टाइप ऑफ फिजन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो ऑर्गेनिजम्स में से बाइनरी फिजन कहते हैं और इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। बहुत ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया गया ऐसे प्रोटोजोन्स में जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियस है पेरेंट्स का वो डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में, जो कि दोनों मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म के, और जो कंस्ट्रक्शन अपेयर होती है इनके बीच में साइटोप्लाज्म की वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है, आउटसाइड से इनसाइड, और फाइनली ऑर्गेनिज्म 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन involves the division of an organism into many small sized daughter organisms। इसमें बहुत सारे छोटे साइज के डॉटर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ये बडिंग इन दिस मेथड वन और मोर आउटग्रोथ डेवलप ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस पे आउटग्रोथ हो जाती है एक या एक से ज्यादा, और ये कहलाते हैं बर्ड्स। फिर वो बर्ड्स जो है वो बाद में पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर अलग से इंडिपेंडेंटली लिविंग करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन इट इज फाउंड इन लोअर मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक लिवर, फ्लूक एंड नीमाटोड्स। फ्रेगमेंटेशन जो है वो बहुत छोटे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में देखने में आई है, जिसमें लिवर, फ्लूक या नीमाटोड्स होते हैं। व्हेन नीमाटोड्स यानी कि वर्म्स, when a living organism divided into fragments, जब उन्हें fragments यानी कि pieces में डिवाइड कर दिया जाता है तो उनका जो हर फ्रेगमेंट है, हर पीस जो है, हर टुकड़ा वो अपना एक पार्ट लॉस्ट कर देता है, लेकिन वो रीजनरेशन का प्रोसेस करके दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की काबिलियत रखता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म्स की फॉर्मेशन को, जो कि टेस्टिस में हो रही होती है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज आता है। इन दिस फेज द सेल्स ऑफ जनरेटिव लेयर नोन एज जर्म सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड। इसमें सेल जो है जनरेटिव लेयर का, जिसे जर्म सेल कहते हैं, वो बार बार डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू और प्रोड्यूस कर देता है स्पर्मेटोगोनिया। फिर ग्रोथ फेज आता है। इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रो होता है साइज में, और अब जो है इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। फिर मैच्योरेशन फेज आता है, जिसमें स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर मेयोसिस के हैप्लॉइड 4 तरह के स्पर्मेटिड्स बना लेता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुई, बार बार रीडिवीजन हुई और स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो साइज में बड़ा हुआ, फिर उसे स्पर्मेटोसाइट कहा गया। स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर 4 में स्पर्मेटिड्स बनाता है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है, जिसमें स्पर्मेटिड्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं और वेल डेवलप्ड स्पर्म्स जो कि डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट में, जिसमें हेड, नेक और टेल का पार्ट होता है स्पर्म का। ये आप देख रहे हैं, ये फाइनली जो स्पर्म बना है, सबसे पहले था स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वो मेयोसिस के बाद चेंज हुआ स्पर्मेटोसाइट में, और फिर एक स्पर्म बनता है जिसमें इसका ये हेड का पार्ट होता है और नेक होती है और टेल। व्हाट इज जर्मिनेशन? गिव द कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन, आल्सो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, कंडीशंस बतानी और मेथड्स बताने हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। सीड की डोरमेंसी तोड़ना। डोरमेंसी क्या है, स्लीपिंग कंडीशन, यानी कि जब तक हमने सीड को जमीन में नहीं बोया वो अपने डोरमेंट कंडीशन में है, सोया हुआ है, उसके एंजाइम्स इनएक्टिव हैं। जब तक कि उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता वो नहीं जागते, जैसे कि पानी, मट्टी से न्यूट्रिएंट्स, सूरज की रोशनी, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ नहीं मिल रहा वो, तब तक डोरमेंट कंडीशन। तो जब ये ब्रेक हो जाती है इसकी डोरमेंसी तो वो सीड जर्मिनेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग। जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन सीड जो है वो डेवलप करते हैं सीडलिंग में। छोटे छोटे जो प्लांट्स उन्हें सीडलिंग कहा जाता है। कंडीशंस क्या है सीड जर्मिनेशन के लिए? ओनली लिविंग सीड्स कैन जर्मिनेट। जो जिंदा सीड्स हैं वही जर्मिनेट करेंगे, यानी ऐसे सीड्स जो कि जर्मिनेट होने की काबिलियत रखते हैं। ये ना हो कि वो सीड बिल्कुल ही अंदर से खराब हो या ख़त्म हुआ हो, मरा हुआ हो, वो जर्मिनेट नहीं होता। रिक्वायर्ड ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। नमी कितनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए। सबसे पहले तो रोल ऑफ वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन वाटर। पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर पर डिपेंड कर रही होती हैं। सीड कोट बिकम सॉफ्ट बाय वाटर। जो सीड कोट है वो बहुत नरम हो जाता है पानी से।
Cotyledons and endosperm absorb water by imbibition, become swollen and exert pressure on seed coat to break. जो कॉटिलेडन्स हैं या एंडोस्पर्म अंदर का हिस्सा और कॉटिलेडन्स बाहर की जो कोटिंग है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, जो स्वेल होने के बाद वो प्रेशर एक्सर्ट करती है सीड कोट पे और वो टूट जाता है. सो द एम्ब्रियो कम्स आउट टू ग्रो, और अंदर से एम्ब्रियो निकलता है, बढ़ता है. एंजाइम्स बिकम एक्टिवेटेड बाय वाटर, एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं पानी से. सॉलिड रिजर्व फूड चेंज इनटू सॉल्यूशन, और जो सॉलिड रिजर्व फूड था वो चेंज होकर सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है. ऑक्सीजन का रोल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मिलती है, जो कि विच रिक्वायर ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत. टेम्परेचर, एंजाइम्स एक्टिविटी रिक्वायर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. जितने भी एंजाइम्स हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही वो एंजाइम एक्टिव होते हैं. और ज़्यादातर जो हीट है सीड्स को रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक ही रिक्वायर्ड होती है. अगर इससे बिलो या इससे ज़्यादा होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करते. मेथड्स ऑफ जर्मिनेशन में एपीजियल जर्मिनेशन है, जिसमें अबव द ग्राउंड जर्मिनेशन हो रही है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है. जो सीड है वो बाहर की तरफ निकल के फिर ओपन हुए उसके कॉटिलेडन्स और फिर हमें लीफ नजर आ रहे हैं. और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, अंदर कॉटिलेडन के ही लीफ निकल आता है और उसकी जर्मिनेशन बिलो अर्थ ही स्टार्ट हो जाता है. दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 reproduction. I hope this video will help you to complete your work, your assignments, your paper preparation. We'll be right back soon with another chapter number 6. Till then, Allah Hafiz, and take good care of yourselves.